if you are aware about basic outline for these articles, you are able to develop very good answer. इस क्वेश्चन में हमारा मेजॉरिटी स्टूडेंट मार्क्स अच्छे लेता है. ट्रिक कब होती है? जब कैम्ब्रिज कोई वर्डिंग चेंज कर देता है क्वेश्चन के अंदर, एंड यू डू नॉट अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेशन. राइट नाउ यू आर सीइंग at universal outline or a note on articles of faith. When you see the Cambridge past paper questions over a period of time, you will see the change in the wording of the question, और जो change of the wording है वो आपकी expectation को क्या करती है, वो जरूरी आपने रीड करनी होती है. एक दो random tricky questions है, बाकी majority आसान है. तो one of the articles is oneness of Allah, और मैं before I will let the students join in the meantime. Articles of faith में oneness of Allah, angels, books, prophets, day of judgment and life hereafter, and then Allah's predestination and decree. There are total 6 articles, और सारे 6 articles पे अकेले 10 मार्क के क्वेश्चन आते रहे, and definitely you are aware कि वो किस तरह से आते हैं. Oneness of Allah अब तक 3-4 दफा एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है. तो how oneness of Allah is mostly asked in CI exams. They have asked alone separately. एक 10 मार्क का अकेला क्वेश्चन है, उसके अंदर कंबाइंड अभी तक मेरे ख्याल में एक दफा ही आया विद अनदर आर्टिकल. मोस्टली दे यूज्ड टू आस्क अ सेपरेट 10 मार्क क्वेश्चन, एंड नॉर्मली दे यूज अ वर्ड 3 एस्पेक्ट्स ऑफ God. They don't ask you the question oneness of Allah as a note. They used to ask right 3 aspects of Tawheed. तो ये एक suggested उसका आंसर है. अगर आपके पास ये एक मॉडल आंसर है, either this one, use your book में भी बहुत अच्छी information है. I will suggest you to add some details in the answer, because normally the question is asked. मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ. कैम्ब्रिज के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अबाउट वननेस ऑफ अल्लाह, दे आस्क यू राइट एन अकाउंट ऑफ 3 एस्पेक्ट्स ऑफ तौहीद. आपने तौहीद को इंट्रोड्यूस किया. 3 एस्पेक्ट्स ऑफ तौहीद कौन कौन से हैं? तौहीद इन लॉर्डशिप या वननेस इन लॉर्डशिप. व्हाट्स अ वर्ड फॉर लॉर्डशिप? There is a word actually. Cambridge can use the word instead of using tawheed or oneness in lordship. What's the word for lordship? Rububiyya. Tawheed और rububiyya और oneness in lordship ये एक सेम चीज है. दूसरा इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है oneness in worship, which is also known as uluhiyya, from ilah, God as our only power to be worshipped. ये कौन सा है? तौहीद इन worship है, हम इसको तौहीद और uluhiyya भी कहते हैं, right? Moving on to the third type, third aspects of tawheed, that is names and attributes. What do we call it? Al asma wa sifat. तो ये 3 names आपको पता होने चाहिए. You can develop your answer. इन तीनों aspects को develop किया जा सकता है. It is, you can say, a comprehensive detail, but you can expand it more. There is a room to expand it. कुछ बच्चे यहाँ पे एक हदीस लिखते हैं Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, regarding the one who memorizes Allah's names and attributes, उसके लिए पैराडाइज की श्योरिटी है. तो यू कैन राइट दैट रेफरेंस ऑफ द क्वेश्चन देयर. आप हदीस का रेफरेंस वहां पे ऐड कर सकते हैं. कुरान में भी अल्लाह ताला ने यूज किया हुआ वर्ड वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना. वेरीली अल्लाह हैज लॉफ्टी नेम्स एंड एट्रिब्यूट्स. यू कैन यूज दैट रेफरेंस देयर आल्सो. ये तो एक आसान क्वेश्चन है. Cambridge gave a reverse question, which I told you earlier. They gave write an account of shirk and its aspects there. So 3 aspects of shirk were asked. And that is not there in most of the teachers' notes. You will not find in teachers' outline में आपको notes में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो Cambridge में एक ही दफा आया हुआ है. And it's 2017 paper. 2017 में एक दफा वो क्वेश्चन आया था. मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं पता. 2017 या 18 के पास्ट पेपर्स देखें, you will find 3 aspects of shirk. अगर मुझे याद पड़ता है तो मैं आपको वो ईयर बता. ऑपोजिट इसी का एग्जैक्टली. आपने यहाँ क्या करना है? शिर्क की डेफिनेशन देनी है, ठीक है, which is opposite of तौहीद. फिर उसके बाद आपने first aspect of shirk in rububiyya. Second, the references भी almost same लगा सकते हैं, क्योंकि you will just define as the opposite. What is rububiyya? God as a Lord, as a power who created Allah alone. ठीक है. फर्क क्या है? बाद बच्चे मिक्सअप कर देते हैं. The difference between lordship and worship. Lordship is God is the only creator, only sustainer, the only one who is controlling the universe. Reference क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कौन सा पैसेज डाल सकते हैं God's lordship में? Which part of it? Rabbil Alamin. Praise to Allah who is the Lord. So you can see the word Lord. Another one. और सोचें. Qul a'udhu bi rabbin nas. Surah Nas first words. Translation. ठीक है. Say I seek refuge from the Lord of the mankind. The Lord. God as a Lord reference यहाँ पे आपके पास आ जाता है. Worship में और Lordship में फर्क क्या है? Lordship means Allah is the only Lord. Worship में He is the only one who deserve to be worshipped, या to be worshipped only, तो वो worship में जाएगा.
will worship the one who believe in lordship also. So this is how you develop that point. ठीक है, लिख सकते हैं वो, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, मैं आपको अच्छा पॉइंट है, आई विल डिस्कस अबाउट दैट वन. अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ना शिर्क की तीन एस्पेक्ट, तो ये तो ऑपोजिट हो गए. ठीक है, वन इज शिर्क इन लॉर्डशिप, शिर्क इन वर्शिप एंड शिर्क इन नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स. अब आ जाता है शिर्क की दो टाइप्स और है, दैट इज बेस्ड ऑन इट्स. बच्चों, कुछ बच्चों ने मुझे तीन टाइप्स लिख के दी, दैट इज अ गुड थिंग. दे स्पोक अबाउट शिर्क इन असगर, they spoke about shirk akbar, and they also talk about shirk. There is one more type which I found in some students answer. Shirk की एक और type भी है. Have you heard about shirk khafi, hidden shirk? Actually, so some students have mentioned it, which mostly goes in category of shirk asghar. What is the difference between shirk asghar and akbar? What is shirk, minor shirk and minor shirk? Major shirk क्या है? To associate partners with Allah. What is minor shirk? To do good deeds for show off. Okay, so that is not the exact shirk actually, but not purely for the sake of Allah. Like you can do the good deeds for people, show off, or you might be doing it for different intentions to get fame among the people or something like that. So this is, but you will focus mainly on these three. अगर opposite question आया, आप इसको आंसर लिख सकते हैं, आपने सिर्फ इसको रिवर्स करना है. ये क्वेश्चन लाइकली है पेपर के अंदर, इधर वननेस ऑफ अल्लाह और शिर्क ऑपोजिट क्वेश्चन जो है. तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए. इसके अंदर थोड़ी सी डेप्थ आपको शहादा, डिक्लेरेशन ऑफ फेथ के टॉपिक से भी मिल जाएगी, व्हिच इज अ पिलर ऑफ इस्लाम, वी विल टॉक अबाउट. जब भी आप कोई आर्टिकल ऑफ फेथ का नोट लिखते हैं, आपका पहला पैराग्राफ सब में सेम हो सकता है. वो क्या है? इमाम मुफस्सल का रेफरेंस. ईदर यू बिगिन विद द रेफरेंस ऑफ इमाम मुफस्सल और यू विल बिगिन विद द रेफरेंस ऑफ हदीस जिब्राइल. डू यू नो हदीस जिब्राइल? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की एक हदीस है जिसमें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम was sitting with holy prophet, so the companions were sitting with holy prophet. हजरत जिब्राइल came in human form. वो आपको उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जी, एग्जैक्टली. तो उसमें एक क्वेश्चन था, who is what is ईमान? Prophet answered it कि she is a student in the class. No, actually she did not answer. So what is ईमान? He said that to believe in Allah, his books, वो पूरी अरबिक वर्ड्स है, अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्र. ये रेफरेंस आप ट्रांसलेशन वहां पे लिख सकते हैं. तो दो में से कोई एक रेफरेंस आप लिख सकते हैं, व्हिच इज अबाउट आर्टिकल्स ऑफ फेथ. ये सारों का बिगनिंग पैराग्राफ होगा जो भी आप आर्टिकल लिखते हैं. यस सर, ऐसे हो सकता है कि मतलब हमें 2 या 3 आर्टिकल्स एक साथ क्वेश्चन में दे दें? कैम्ब्रिज में एक दो आ चुके हैं, 3 अभी तक नहीं आए. 2 आ चुके हैं, वो आप थोड़ा सा पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस पे, बल्कि आप छोड़ दें, मई जून 2025 में 2 आर्टिकल्स आए हुए थे, बिलीफ इन प्रॉफिट्स एंड बिलीफ इन बुक्स. दैट्स देयर. तो सर अगर मतलब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो हमने उसमें फिर कितने रेफरेंसेस लिखें? दिस इज योर प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरिंग डिपेंडिंग ऑन योर राइटिंग स्पीड, डिपेंडिंग ऑन. अब इसका स्ट्रेटजी बता देता हूँ. अगर 2 आर्टिकल्स एक साथ आते हैं, जो भी पिछले साल स्टूडेंट्स ने स्ट्रगल भी किया, दे गेव आर्टिकल्स, 2 आर्टिकल्स. और आई थिंक मैंने यहाँ पे जब पहले रूटीन लेक्चर दे रहा था, मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था. कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिलीफ इन बुक्स पूरा रिपीट करते हैं, बिलीफ इन प्रॉफिट्स पूरा रिपीट करते हैं, व्हिच विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम. देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर कॉमन पैराग्राफ, बोथ आर आर्टिकल्स ऑफ फेथ, रेफरेंस ऑफ इमाम मुफस्सल आपका एक ही पैराग्राफ में आ जाएगा. अनदर कॉमन पैराग्राफ, द पर्पस ऑफ सेंडिंग द बुक्स एंड द प्रॉफिट वाज सेम. Understand? The third common paragraph, the books which were revealed to following prophets. तो आपका एक ही दफा आएगा, you don't have to repeat it. बाकी चीजें आपकी स्ट्रक्चर कर सकते हैं आप सेपरेट. आई विल कम टू दैट डिस्कशन में उसकी तरफ आता हूँ. पहला टॉपिक 10 मार्क का क्वेश्चन. दूसरा एंजल्स. एंजल्स में कोई मुश्किल चीज नहीं है, आउटलाइन आपने बनानी है. मैंने यहाँ पे आउटलाइन नहीं लिखी हुई है, लेकिन आई डोंट नो, मैंने एक हैंडआउट में इसको लिखा था, यहाँ से वो शायद डिलीट हो गया. आई विल सजेस्ट यू टू मेक 5 पैराग्राफ्स ऑन एंजल्स टॉपिक. फर्स्ट पैराग्राफ जो आपका जाएगा, दैट इज सेम रेफरेंस ऑफ इमाम मुफस्सल, आर्टिकल ऑफ फेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक पैराग्राफ बना दिया, which is common for all the articles. Then the second paragraph, nature of angels. You will talk about the nature of angels, who are the angels, their nature, and all of these things are going to be discussed in it. And then, yeah, sound good. So इसको थोड़ा सा लोकेशन हो रहा है. Okay, तो आपने क्या करना है, nature of angels को explain करना है, और nature of angels में they are made up of fire, and all of these things are going to be discussed in it. Fire, मैंने सही बोला गलत बोला? What's the right thing? Light or divine light or noor, you will talk about it. How angels are different from humans, how they are similar to humans, आपने explain करना है. Okay? What was the belief of people of Makkah about angels? They are daughters of Allah. And Islam said that they are not daughters of Allah, they are the creations of Allah, and who are always busy in worshipping Allah. आपके 2 पैराग्राफ्स हो जाएंगे.
थर्ड पैराग्राफ में आपने क्या डिस्कशन करनी है? यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट फेमस एंजल्स एंड देयर ड्यूटीज। 4 फेमस एंजल्स तो लाजमी लिखने हैं। दे आर जिब्रील, मीकाईल, इसराफील एंड इजराइल। अच्छा, मिस्टेक कहाँ होता है? स्टूडेंट्स इजराइल और इसराफील की ड्यूटीज मिक्सअप करते हैं और कुछ बच्चे इजराइल को इसराइल लिख देते हैं, which is somewhere acceptable, कैम्ब्रिज समझ जाता है, लेकिन कोशिश करें। इजराइल इज मलकुल मौत, द एंजल ऑफ द डेथ। एक मिनट में आता हूँ। Israfil is the one who will blow in the trumpet. Jibreel bring the messages. What's the duty of Mikael? Environment, weather. 4 main हो गए. What are the other 4? Malik and Rizwan. Munkar Nakir. Keeper of paradise is Rizwan. Kiraman And the keeper of Munkar Nakir, yes, Musa. Sir, Kiraman Katibin. Kiraman Katibin, respected recorders. ये 8 मैसेंजर्स है, सॉरी एंजल्स हैं जो आपने कवर करने हैं। एक पैराग्राफ में लिख लें, 2 में। ये मेजॉरिटी बच्चे करते हैं। हाईएस्ट लेवल इसमें क्या है? सपोर्ट ईदर ऑफ द एनी ऑफ द एंजल्स विद अ कुरानिक रेफरेंस। Like I found some students mentioned that angel Jibreel descends on the night of power Laylatul Qadr, और वो सूरह कदर का रेफरेंस दे देते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह रेफरेंस आ गया। They descend by the will of Allah. You can write that reference there. Some students speaks about Hazrat Jibreel और हजरत जो इजराइल है। कुरान की वर्ड से कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल लज़ी वुकिला बिकुम, योर सोल विल बी टेकन बाय द मलकुल मौत हु इज असाइन्ड फॉर यू। तो यू कैन टेक द रेफरेंस फॉर दैट वन आल्सो। ये आपके आंसर को थोड़ा सा अप कर देता है। इफ यू जस्ट रिलाई ऑन नेम्स एंड ड्यूटीज फाइन, बट इफ समवन राइट्स अ रेफरेंस योर आंसर गोस अ बिट मोर हायर देयर। I found some students' answers who have spoken about the angel who is assigned to blow the soul in the mother's womb when the baby is 4 months old in the mother's belly. तो वो भी लिखा जा सकता है। And what that angel do, he not only blows the soul, he writes about the destiny of a kid, if he is going to be successful or a bad person, like Shaqi or Saeed word is used there. Timeline, food, this is how that angel, this is the angel's duty there. No need to write about Harut and Marut. If you find in some books, that's not the requirement. Okay, that's not the part of the angel topic. आपने फर्दर क्या चीज लिखनी है? एंजल जिब्राइल पे एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करनी है अपने आंसर में। कैम्ब्रिज ने आपसे 2 चीजें पूछी हुई हैं एटलीस्ट में अभी रिसेंट क्वेश्चन में, और उन्होंने पूछा हुआ है गिव एग्जांपल्स ऑफ एंजल्स विजिटिंग हजरत इब्राहिम एंड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आपके पास बहुत एग्जांपल्स हैं। आप जो एंजल्स ब्रॉट द रिवलेशन टू होली प्रॉफिट वाले क्वेश्चन से एग्जांपल्स दे सकते हैं। हजरत इब्राहिम के पास एंजल्स मल्टीपल टाइम्स आए, लेकिन जो कैम्ब्रिज की एक्सपेक्टेशन थी दैट वाज टू गिव द टाइडिंग्स ऑफ द बर्थ ऑफ व्हिच प्रॉफिट, व्हिच सन। हजरत इब्राहिम के घर पे एंजल्स आए ह्यूमन फॉर्म में, दरवाजा नॉक किया एंड दे आस्क्ड इसहाक अलैहिस्सलाम एक्चुअली। और आपको वो पूरा वाकया आई एम श्योर पता होना चाहिए कि हजरत इब्राहिम के घर पे ह्यूमन फॉर्म में एंजल्स ने दरवाजा नॉक किया था एंड दे ओपनड द डोर एंड हजरत इब्राहिम वाज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज देम। ठीक है, ये कैम्ब्रिज का क्वेश्चन है अक्टूबर-नवंबर 2022 का, और उसकी वर्डिंग मैं आपको बल्कि दिखा दूं। आई वांट कि आप साथ ही उसको देख भी लें। आई विल फॉरगेट टू डिस्कस दोस क्वेश्चंस देन। आई होप आई हैव डाउनलोडेड दैट पेपर। यस, मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्ट साथ साथ दिखा दूं ताकि आपको ना ये क्लियर होती जाए चीजें। इफ आई सी शो यू द लास्ट लेटेस्ट क्वेश्चन about angels, not latest sorry, the tricky question on angels 2022 में आया, if I'm not wrong, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है ये 2022 का ये। अच्छा, ये पाकिस्तानी वेरिएंट था, लेकिन हो सकता है वो 23 में भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद आ रहा है, इसके क्लोज समवेयर है। ठीक है, तो नहीं, एंजल्स पे क्लियर एक क्वेश्चन है, वो थोड़ा ऊपर होगा, 24-23 में है, वो है बस, ये मुझे याद है इससे। एंड यू आर आस्किंग के बिलीफ इन प्रॉफिट्स और प्रीडेस्टिनेशन भी एक साथ आया हुआ है। अभी मुसा आपने क्वेश्चन पूछा था कैन दे बी आस्क्ड कंबाइंड, सो दे वर आस्क्ड एक्चुअली। ओके, उसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था एंजल्स का, मैं साथ साथ पहले बता दूं। इट्स हियर, ये रहा, ये वाला है क्वेश्चन 5। ये किस साल आया हुआ है? अक्टूबर-नवंबर 2023 में आया हुआ, नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट का क्वेश्चन है। ये तो है पाकिस्तानी। ये क्वेश्चन देखें, अब बिलीव इन एंजल्स टीचर्स के नोट से बड़ा अच्छा आंसर होता है, आप एज इट इज वहां से लिख सकते हैं। लेकिन कैम्ब्रिज ने यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ट्रिक अडॉप्ट की, और ट्रिक ये थी दे एडेड अ क्वेश्चन बिलीव इन एंजल्स। परफेक्ट आंसर आप लिख लेंगे, आप स्ट्रगल कहां करेंगे? इंक्लूड एग्जांपल्स ऑफ इंस्टेंसेस इन व्हिच एंजल मेट अब्राहम मींस हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम, एंड The next one is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad पे कैम्ब्रिज ने जो एग्जांपल रिकमेंड की है जिसमें वो ह्यूमन फॉर्म में मस्जिद नबवी में आए थे और वो सवाल पूछे थे,
कैम्ब्रिज इज एक्सपेक्टिंग दैट आंसर। हजरत इब्राहिम वाला वाकया मैं आपको ब्रीफली बता दूं क्योंकि कुछ फेसेस मुझे ऐसा लगा कि उनके लिए न्यू चीज है। तो आप हजरत इब्राहिम से रिलेटेड, मैंने स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में ओपन क्वेश्चन दे दिए थे। मैंने कहा थिंक वेयर हजरत इब्राहिम मेट हजरत जिब्राइल। सो दे थॉट, दे गिव मेनी एग्जांपल्स टू मी। उन्होंने एक एग्जांपल दी कि वो बेटे को स्लॉटर करने लगे थे, तो एंजल आए और उन्होंने उनको हटाया और वहां पे जो शीप था या लैम्प था उसको रिप्लेस कर दिया। इट्स अ गुड एग्जांपल। कैम्ब्रिज ने एग्जांपल रेकमेंड की हुई है कि वो सूरह ज़ारियात का रेफरेंस है कुरान में कि हजरत जिब्राइल होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम अपने घर में थे और उनकी वाइफ जो थी उस वक्त साथ थी वो हजरत सारा थी, और दरवाजा नॉक हुआ। टू एंजल्स, एंजल जिब्राइल नहीं थे उसमें, टू एंजल्स इन ह्यूमन फॉर्म दे नॉक्ड द डोर एंड हजरत इब्राहिम वेलकम देम एंड ही नोटिस कि दे आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, वेलकम देम एंड सर्व देम विद फूड। एंजल्स ने फूड नहीं खाया तो हजरत इब्राहिम वाज शॉक्ड एंड ही डिड नॉट फील कंफर्टेबल। तो अल्लाह देन आस्क्ड हजरत जिब्राइल, सॉरी द एंजल्स, दे सेड डोंट वरी, we are angels of Allah and we are sent here। ये वो वाकया कैम्ब्रिज आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। They went to his house to inform him about the birth of a son named Ishaq। This is what Cambridge is expecting in the marking scheme there। Okay, अब उसके बाद यहाँ पे ये आंसर कंप्लीट हो जाता है और एंजल्स पे आई एम श्योर मुश्किल कोई चीज नहीं है, सिर्फ आपको चीजें याद रखनी है कि किस तरह से डेवलप करना है। पार्ट बी का आंसर इजी होता है। इफ यू बिलीव इन एंजल्स, हाउ इट्स गोइंग टू इफेक्ट योर डेली लाइफ? बिलीव इन किरामन कातिबीन makes you accountable. You feel cautious that angels are recording my good and bad deeds, so you will avoid bad deeds. Believe in Munkar and Nakir makes you prepare for the day of judgment or the questions which are going to be asked there. Believe in Hazrat Mikail, for example, how is going to make you, like, what's the effect of belief in Mikail alayhi salam? To prepare, the angels are following the duty of Allah. तो वी शुड ऑल्सो अबाइड एंड फॉलो द ड्यूटी। अगर वो थोड़ा सा भी गड़बड़ करें क्या होगा? क्लाइमेट का जो क्या आजकल ग्लोबल वार्मिंग और दूसरे इश्यूज आर देयर, सो यू कैन कनेक्ट दैट थिंग with it also, but anyway ऐसा क्वेश्चन कैम्ब्रिज में नहीं आया हुआ। कैम्ब्रिज has asked the question mostly as a general question। तो मोस्टली स्टूडेंट्स हजरत जिब्राइल पे बिलीव का बेनिफिट ये है कि we will act upon what he brought to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Malakul Maut, we know, we prepared to meet him anytime। Munkar and Nakir, you already gave the answers for that one. Okay. Sir, for part A, how many examples do we need to give? Actually, again, there is no fixed criteria. This is the question which many students ask, okay, how much detail we will write. Even someone sent me the message, how do you define the word extensive detail in the answer? This is what we cannot, no one can tell you about extensive detail. There is no limit for it. ठीक है, अगर आप हायर लेवल यूनिवर्सिटी की बुक्स ओपन करेंगे, एंजल के ऊपर आपको पूरी बुकलेट मिल जाएगी लिखी हुई। We are not going to use that one. So definitely we are going to write a comprehensive answer. It depends on how much information you can manage in that time period. Many students, they gave me the answer of 4-5 pages. And my first question is, how much time did you need to answer that question? Some students say we can manage in just 15 minutes. I said, that's fine, perfect. There are some students, they said, we were not able to do the next question because of this question. I said, that is not a right decision. आपने उसको change करना है. Brief write करें, थोड़ा लिखें, लेकिन आंसर कंप्लीट करें। ये आपको जज करना है कि what is your writing speed and how much information you can execute in that time limit. Okay, I have students who are able to answer 5-6 pages in just 10 to 12 minutes, and there are cases students are not able to write more than 1.5 page even. So for them, the target is completing the answer, not to focus on one part of it. और ये कई students का issue आता है, paper complete नहीं होता, and they get less marks there. So this is what we need to work. So there is no fixed limit, there is no final answer. You need to decide how much you can write in that time limit there. ठीक है, you can practice and you see. इसलिए आप मेरे answers को देखें, कई दफा आपको लगेगा कि comparatively brief there at some places, and you might be thinking it can be expanded more, and it can be expanded because I am considering different types of students when I'm providing you with the model answer. So I am not giving you based on one student who is going to be getting distinction on it. वो एक एवरेज आंसर होता है जो अबव एवरेज आपको गुड से एक्सेलेंट पे लेके जा सकता है if you take the idea. And I tell you sometimes कि आप बुक ओपन करें, यहाँ से additional points ऐड करें, because the students who are struggling, if I give them such a long detailed notes, they will say हम तो कर ही नहीं सकते. So we have to consider all type of students there. My answers mostly covers or reach maximum requirement of the question, और A star उस पे surely आना चाहिए. A star में highest आपकी way of development में वहाँ पे रोल प्ले करती है. Okay, moving to the next article. Actually articles यहाँ पे हमारे पास जो
इस दफा लाइकली हैं, दैट इज फर्स्ट टू एंड द लास्ट टू। ये जो बीच के आर्टिकल्स हैं, रिवील्ड बुक्स and profits, it's easier, by the way, it's not a big deal, and they are recently asking 2 back-to-back papers. 2024 non-Pakistani variant, 2025 Pakistani variant, same questions were repeated. So that is books and the profits there. So this is less likely. Of course, you are going to go with that when you will follow the same pattern. आपने introductory paragraph कौन सा लिखना है, ईमान मुफस्सल का reference लिख देना है, क्या क्या चीजें आएंगी, यहाँ मैंने outline बनाई है इसकी। First paragraph about as an article of faith, purpose of sending the books, you will explain it. There is a reference behind it. Why did Allah send the books? Famous books and the Sahifas, we will talk about them with references, okay? And then you're going to talk about significance of Quran over other books. This is the way how you will stretch your answer. Agar ye akele 10 marks mein aa gaya, how you will expand it more? You're going to talk about each book and how it got corrupted over a period of time. What are the famous books, by the way? Torah, believe, revealed on Torah, revealed on Hazrat Musa. Psalms or Zabur revealed on Hazrat Dawood. Injil revealed on Hazrat Isa, and Quran, of course. You will develop it how these books got corrupted over a period of time and how they are different from Quran. यहाँ पे मैंने explain किया हुआ है, आप बाद में एक दफा इसको जब आप read करेंगे, you will find references of Quran where Quran has spoken about the books which were revealed over a period of time. With references, we have references here. The role of Christian scholars, the role of Jewish rabbis or rabbis, जो उनके religious scholars हैं, how did they make changes in it? We will talk about it. यहाँ पे मेरे एक handout में mistake है. The last line, the Psalms or the Zabur is the book containing praises of Allah. It is lost actually. It's not available now. Okay, so there is a word which is making the sentence wrong here, and it's completely lost. Okay, it's not completely lost bhi ho sakta because we are not having that book available. So maybe some parts of it are there, but that book is not the book of Sharia. Zabur is not the book of ruling or Sharia. It's just a book of praises. Who used to recite it? Hazrat Dawood alayhi salam. And he used to recite it, and you can develop that point there. Baki asan hai, this is Quran, significance over rest of the books as the last book of Allah. So ये आसान है, इसमें मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मूव करूंगा. Belief in prophets and messengers. Outline is somewhere same as belief in books. How? Article of faith का same beginning paragraph. Purpose of sending the prophets. Famous prophets and the books they received. Significance of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam over rest of the prophets. तो ये आपकी एक basic outline बन जाती है, but यहाँ पे हम दो चीजें ऐड करेंगे. एक है difference between a Nabi and a Rasul. You need to speak about that one. Another thing is difference and similarity between Nabi and normal human being. तो आपके आंसर की थोड़े से पैराग्राफ्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं. How Nabi and Rasul are different. Nabi is simple, we say Payghambar, the one who brings the messages. Just messenger, he brings the messages, but the Rasul is a bit higher level and he can make changes, or either he receives a book, or he receives a sahifa, or he gets a new sharia, or he makes changes in the previous sharia. That goes to the Rasul category. और mostly जितने भी name हमें पता है वो ज़्यादातर रसूल हैं, और prophets mostly हमें नहीं पता. Prophet की example अगर हम डालना चाहें तो हजरत हारून की डाल सकते हैं. वैसे कुछ books में हजरत आदम is also counted as a nabi, क्योंकि आप जब कुछ books में थोड़ा higher level पे जाते हैं, the first Rasul on this earth was Nuh alayhi salam, not Hazrat Adam alayhi salam. So, but don't get confused. अगर किसी book में ये लिखा हुआ है, क्योंकि Hazrat Adam was sent not with the new Sharia, he was sent with the specific teaching. तो इसलिए ये debating discussion भी थोड़ा सा है. The first Rasul you will find in some books Hazrat Nuh alayhi salam. ठीक है, अगर आप Hazrat Adam भी लिखते हैं, it's fine. Okay. Adam is the first prophet to be sent, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger. You are going to talk about that one. यहाँ पे आपको outline मिल जाएगी. This is the outline for the आपके पैराग्राफ्स स्ट्रक्चर हो जाएंगे. आपका आंसर बिगिन होगा आर्टिकल ऑफ फेथ के रेफरेंस से, नेचर ऑफ प्रॉफिट्स आ जाएगा, पर्पस ऑफ सेंडिंग, क्यों, टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट्स. व्हाट्स द टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट्स? 124,000 आप लिखना चाहें, अगर से 100% एग्जैक्टली नोन नहीं है. कितने कुरान में अल्लाह ने मेंशन किए हैं प्रॉफिट्स? 25 इज मोस्ट लाइकली, वरना कुछ बुक्स में 26 भी है, फाइन, नो प्रॉब्लम. 28 मेरा ख्याल है नहीं, ठीक है, 25 या 26 है. और बाकी जो प्रॉफिट्स और रसूल है वो हमें हदीस या डिफरेंट सोर्सेज से मिलते हैं. वी शुड बिलीव इन ऑल ऑफ देम
without differentiating कि ये better था या वो था, वो एक अलग discussion आता है. Famous ones, we need to know the names. To whom they were sent. Highest level ये आप prophets के miracles भी mention करते हैं. You can talk about few messengers, they will receive some miracles. आपने आंसर को स्ट्रक्चर करते हुए आप कोई भी चूज कर ले, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत सुलेमान, he was the king. What was the common profession of all the shepherd? आप हदीस भी कुछ बच्चों के मैंने आंसर में देखी, उन्होंने लिखी हुई है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि there is no prophet which was sent and he did not remain as a shepherd, तो वो रेफरेंस आ सकता है. ये बहुत डिटेल्ड आंसर है प्रॉफिट्स वाला. इसको आप कट डाउन थोड़ा सा कर दें, मैंने आपको आउटलाइन बता दी है. Even tribes to whom they were sent, what was the reaction of the tribes? Did they went through the trials? You will write which prophets got killed, by the way, by the people of that time. Which of the prophets who were either killed or there was an attempt done by the people to execute some prophets? नहीं सोचे. हजरत ईसा. हजरत ईसा, वैसे हजरत मोहम्मद पे भी लिखा जा सकता है who said that, yes, लेकिन अगरचे वो एक हमारे उसमें नहीं जाएगा, लेकिन अगेन गुड. हजरत ईसा स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जांपल है, आपने मेंशन करना, अल्लाह प्रोटेक्टेड हिम एंड टुक हिम टू द हेवंस एंड ही विल कम बैक बिफोर द एंड ऑफ द वर्ल्ड. दूसरे जो प्रॉफिट हैं जिनको असैसिनेट किया गया या मार्टायर हुए, देवर ही वाज किल्ड, एक्चुअली दो के बारे में एक का कंफर्म है, वो है हजरत याह्या अलैहि सलाम. हजरत याह्या एंड हिज फादर, हु इज द फादर ऑफ हजरत याह्या? बाय द वे वैसे सोच में पूछना जरूरी नहीं है, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ. हजरत नहीं, हजरत याह्या के जो फादर है ना, वो हजरत मरियम के केयर टेकर भी है, एंड ही इज द अंकल ऑफ, ही इज आल्सो अ प्रॉफिट. And he was, when he saw Hazrat Maryam eating the fruits out of the हजरत जकरिया. Hazrat Zakaria, correct answer. तो हजरत जकरिया और हजरत याह्या दोनों को उस वक्त के लोगों ने असैसिनेट करने की कोशिश की थी. आई थिंक दे बोथ गॉट मार्टायर्ड, लेकिन एक के बारे में उसके ऊपर डिटेल हमें डेप्थ में नहीं जाना है कि वो ट्री के पास गए एंड ऑल ऑफ दिस, क्योंकि उसके ऊपर डिफरेंट डिबेट्स और डिस्कशन. एनीवे, you will find a lot of information about prophets to answer and use it according to the requirement of the question. अब आ जाते हैं सेकंड लास्ट जो हमारे पास है, वो है बिलीफ इन द लाइफ आफ्टर डेथ एंड डे ऑफ जजमेंट. कैम्ब्रिज का ये क्वेश्चन जो है ना, आपसे मोस्टली दोनों चीजें पूछते हैं. हमारे स्टूडेंट्स का मिस्टेक ये होती है, वो डे ऑफ जजमेंट पर डायरेक्ट शुरू कर देते हैं लिखना. क्वेश्चन मोस्टली पूछ रहा होता है लाइफ आफ्टर डेथ एंड डे ऑफ जजमेंट. इधर अगर वो आपसे खाली डे ऑफ जजमेंट भी पूछते हैं, आई विल सजेस्ट कि आपने लाइफ आफ्टर डेथ से बात शुरू करनी है. व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर दिस आंसर? अगेन पहला पैराग्राफ ऑलमोस्ट सेम है, life after death के ऊपर reference of Imam Mufassir and all of these things. Life in this world is temporary. बरज़ख का discussion आ जाएगा. बरज़ख, you know it, right? The stage between the death and the day of judgment आप डिटेल लिखेंगे, और बरज़ख के अंदर आपने मुनकर नकीर के questions, punishment and reward का discussion आएगा. Signs of क़यामत. अच्छा, आपका पहला पैराग्राफ introduction, second बरज़ख detail, third signs of क़यामत, fourth and fifth will be the stages of the day of judgment. You can make 6 paragraphs, it's up to you. पहले 2-3 में आपने life after death start किया है. अगले पैराग्राफ में you are talking about the day of judgment, or you are talking about al-akhirah. There are different names for the day of judgment. It is al-hashr, al-qiyamah, as-sa'a, or al-akhirah. Many words are there, so this is all going on to that discussion there. You will talk about what are the different stages on the day of judgment, starting with blowing of the trumpet. One thing is blowing of the trumpet. What will happen after the blowing of the trumpet? Destruction. Very good. Reference of Surah Al-Qariyah or even Surah Al-Haqqa. Good. What will happen after destruction? Resurrection. Very good. Who will blow the trumpet back again? Hazrat Israfil alayhi salam. Uske baad, what will happen? Assembling of the people. Of course, you spoke about it. Here, deeds, weighing of deeds. What do we call that stage? Weighing of deeds is called? ट्रम्पेट में क्या होगी? सॉरी, स्वीट साउंड होगी, और फिर वो अब इतना डेप्थ में आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है. तो बट वी नॉर्मली गो ऐसा. उसके ऊपर रेफरेंस भी है कुरान का, वनुफिखा फिस्सूर फैज़ाहुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून, सूरह यासीन का रेफरेंस है, लिखा जा सकता है. आप डेप्थ में उसको एक्सप्लेन करेंगे तो ठीक है. अच्छा, माय क्वेश्चन वाज what do we call that stage in which people deeds will be weighed? There is a word for it. What is that? Day of Arafah? नहीं, डे ऑफ अरफा नहीं, बल्कि पाकिस्तान में एक तेल का ब्रांड का भी नाम है वो, और सोचें आप, बैंक का भी नाम है अल मीज़ान, ठीक है. तो मीज़ान, दैट इज फर्स्ट सेकंड स्टेज. अल हशर, अल मीज़ान,
After Al-Mizan, handing over of the good and the bad deeds, good people will get the deeds from where? The right hand. The bad people will get the deeds from the left hand. You will write their reaction on that one. And lastly, उसके बाद क्या होगा? After you get the good or the bad deeds, people have to cross the bridge. What is it called? Al-Sirat या bridge of Al-Sirat. And final abandonment day, आपका paradise or hellfire है. You may go in detail of it. You can talk about the levels of paradise. You can talk about the level of the hellfire also. ये आपका आंसर स्टेज वाइज डेवलप हो जाएगा. ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर? आगे इसके बाद ये पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन है. मैं आपको क्वेश्चन बैंक की तरफ आता हूँ. पहले मैं इसको वाइंड अप कर लूँ डिस्कशन को. ये स्टेजेस आ गए, डिटेल्स आ गई, ये सारा डेवलपमेंट यहाँ पे आपका आ जाएगा. मैंने आपको डिस्कस कर दिया स्टेज 1 2 3 सारा यहाँ पे आ जाएगा. अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, और वो है बिलीव इन प्रीडेस्टिनेशन एंड अल्लाह's डिक्री. अल्लाह's प्रीडेस्टिनेशन एंड डिक्री, इसमें इट्स अप टू यू. व्हाटएवर मॉडल आंसर सूट्स यू, यू कैन राइट अबाउट इट. प्रीडेस्टिनेशन एंड डिक्री का जो बिगिनिंग पैराग्राफ है वो सेम है. दैट इज reference of Imam Mufassir. Second thing, you're going to talk about the word al-qaza and al-qadar. What's the meaning of the word al-qaza? What's the meaning of the word al-qadar? You will explain it. Then you will talk about one thing where all the destinies are preserved. What is that? Lawh Mahfuz, the preserved tablet. You will write the first thing Allah created was, what's the first thing? The pen. And Allah asked the pen to write. The pen said, what should I write? Allah said, the destinies of the creation. So the pen wrote it, and everything is preserved there. This is the first stage of predestination and decree. Wahan se, it's in the knowledge of Allah. It's in the record of Allah, but it is executed gradually by the will of Allah. उसका अगला स्टेज क्या होता है? Whenever a baby is in mother's womb, वो मैंने आपको बताया नेक्स्ट स्टेज होगा, और ग्रेजुअली जब वो एग्जीक्यूट होगा, that happens without by the will of Allah. वहां पे भी चीजें लिखी हुई हैं, they will not happen until Allah wills. What is the word Allah says for something to happen? And it happens. Kun fayakun, right? Allah, when Allah wills for something be, and it happens exactly. So वो आपने वहां पे पॉइंट क्या करना है, मेंशन करना है. बाकी डिटेल्स आप फर्दर डेवलप कर सकते हैं. Well, everything is predestined and decided. Why the people are accountable for their deeds, by the way. How you will develop that part. They have limited free will. You will speak about the limited free will for the humans, and you are accountable for that limited free will. Does Allah burden a soul above his or her capacity? ये आपने वहां पे डिस्कशन करनी है. ठीक है, और ये डिफरेंट वे में डेवलप हो सकता है. यहाँ पे एक सजेस्टेड आंसर है और दूसरा सजेस्टेड ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्ड. आई सजेस्ट कि अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आप करें, आप इसको फॉलो कर सकते हैं. इफ यू हैव एन ऑल्टरनेट, फरखंदा नूर की बुक में भी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है. कुछ बच्चे यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन करते हैं, हाउ मच फ्री विल डू वी हैव. तो वो एक आई थिंक हजरत अली से रिलेटेड एक हदीस को नरेट करते हैं, जिसमें समवन आस्क्ड हाउ मच लिमिटेड फ्री विल अ पर्सन हैव. He mentioned raise your one hand, he did it. Then raise your second hand, he did it. Then he said raise your one leg, he did it. And then he said the second leg, he said I cannot. That he said this is the free will which you are provided. बाकी आप उसको और भी examples के through develop कर सकते हैं. What are the different questions asked in recent years about articles of faith? यहाँ से मैं आपको पहले उसको दिखा देता हूँ और फिर हमारा ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो जाएगा. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है फिर वो पूछ भी सकते हैं. अगर मैं बात करूं बिल्कुल लेटेस्ट पेपर की, जो अक्टूबर नवंबर के पेपर है, उसमें नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट में जो आर्टिकल आया है कोई भी नहीं आया हुआ. ठीक है, देयर इज नो क्वेश्चन फ्रॉम द आर्टिकल ऑफ फेथ इन नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट. दे कैन गिव यू द 2 क्वेश्चंस ऑन कालिफ बाय द वे. तो यू कीप इन माइंड there is the possibility कि 2 questions on one caliph can be asked there. Okay, we can't say anything honestly. I personally think there is a chance of one article. I will see. I think article was asked here in this paper. No, so there is a chance for article in your paper, by the way. And which article I will tell you. I personally think most likely life after death and day of judgment है. सेकंड लाइकली जो है वो प्रीडेस्टिनेशन या वननेस ऑफ अल्लाह से रिलेट करता है. तो ये 3 है जिसके ऊपर ज्यादा लाइकलीनेस है. एंजल्स आसान है, वो भी काफी टाइम से नहीं आया. यू कैन मैनेज इट, यू कैन सी. प्रॉफिट्स एंड बुक्स रिसेंटली दो दफा आया, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा. तो आई पर्सनली थिंक इट्स वेरी लीस्ट लाइकली कि वो है. ओके, यहाँ पे आपको आर्टिकल्स दोनों पेपर्स में अक्टूबर नवंबर 2015 इन बोथ वेरिएंट्स, नो क्वेश्चन ऑन आर्टिकल्स. ओके, मई जून में पाकिस्तानी वेरिएंट आपको पता है, दे गिव 2 आर्टिकल्स. लेकिन हम नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट देखें तो व्हाट इज आस्क्ड इन नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट. मई जून में
Allah's predestination and decree. So it somewhere reduces and somewhere highlights its significance. क्योंकि अगर आप देखेंगे अक्टूबर पिछले वाले पेपर में बिलीफ इन बुक्स एंड प्रॉफिट्स पहले नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट में, देन दे गिव इन पाकिस्तानी वेरिएंट. तो आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पेपर में प्रीडेस्टिनेशन एंड डिक्री का. ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और मुश्किल नहीं है, रटा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये समझ नहीं आता. इट हैज टू बी मेमोराइज्ड. ओके, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे. पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था पिछले साल का. ये क्वेश्चन आप देखेंगे 2024 में एग्जैक्टली नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट में आया हुआ है. ये स्टूडेंट्स जो अभी अपेयर हुए थे पिछले साल उनका क्वेश्चन है. अब इसकी आपको रेपिटेशन दिखाता हूँ. व्हेन यू लुक बैक, इसमें कोई नहीं है क्वेश्चन और यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन नहीं है. ये आ गया, ये वननेस ऑफ अल्लाह, ये आप अपने पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दिस आई वाज टॉकिंग अबाउट इट इन द बिगनिंग. वननेस ऑफ अल्लाह नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट में आया था 2022 अक्टूबर नवंबर 20 पाकिस्तानी वेरिएंट का क्वेश्चन है. इस तरह से क्वेश्चन आता है और आप इजीली आप कर सकते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील. वैसे चांस कम है क्योंकि अभी रिसेंटली आया हुआ है. और ये वो क्वेश्चन है. कैन यू सी दिस? गिव एन अकाउंट ऑफ बिलीफ इन प्रॉफिट्स एंड बुक्स. ये कब आया था? 2024 मई जून, नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट. और 2025 पाकिस्तानी वेरिएंट में ये क्वेश्चन क्या हो गया, दोबारा रिपीट हुआ विद इन 1 year. So you can expect similarly predestination and decree repetition also. Understand? Moving on to the next ones, we have no question on articles here. No question on articles here. Angels. कब आया angels? पाकिस्तानी वेरिएंट अक्टूबर नवंबर. और ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था जिसमें क्वेश्चन उन्होंने से रिलेट किया हुआ है. और फिर we have no question from articles, no question. यहाँ पे जो शुरू में मूसा ने भी क्वेश्चन पूछा था कि 2 आर्टिकल्स एक साथ आ सकते हैं, आए हुए हैं. बिलीफ इन प्रॉफिट्स. अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है, समटाइम्स जैसे वन ऑफ देम और समटाइम्स जैसे और. तो आपने ख्याल रखना, आपने फिर एक पे लिखना है, दोनों वहां नहीं लिखने. यहाँ पे उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे 2 आर्टिकल्स बोला है, तो आपने दोनों पे लिखना है. लेकिन यू नीड टू मेक श्योर व्हाट्स द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन. कभी कभी वो चॉइस भी दे रहे होते हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर वो रिपीट ना हो. ओके, उसके बाद है वननेस ऑफ अल्लाह, बैक अगेन रिपीटेड. अब यहाँ पे इसने आपसे 3 एस्पेक्ट्स नहीं पूछे हुए, लेकिन कैम्ब्रिज की मार्किंग स्कीम जो आप देखते हैं, ईआर देखते हैं, दे आर सेइंग कि स्टूडेंट्स हु मेंशन द 3 एस्पेक्ट्स विल बी क्रेडिटेड मोर. सो 3 एस्पेक्ट्स ऑफ तौहीद, बैक अगेन इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपके पास आ जाता है. फिर उसके बाद लाइफ आफ्टर डेथ कब आया लास्ट टाइम? अक्टूबर नवंबर 2022 में. तो इसलिए ये बहुत हाईली एक्सपेक्टेड है आपके पेपर में. और यहाँ पे आप देखें, मुस्लिम्स बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ एंड डे ऑफ जजमेंट, दोनों चीजें पूछी हुई है. जब आप मार्किंग स्कीम देखेंगे, आप देखें तो उसने मेनली डिस्कशन की हुई है डेथ, उसके क़यामत के डे के बारे में. लेकिन जब ईआर आप देखते हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट दे से स्टूडेंट शुड स्पीक अबाउट बरज़ख एंड मेडिटेट. मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स है, इवन दे स्पीक अबाउट द वे एंजल्स टेक द सोल ऑफ अ पर्सन, the way it's taken from the body, and then how it goes to Illiyin और Sijjin भी डिस्कस करते हैं, and how they are dealt in the grave. तो आपकी डिपेंड करता है आप कितनी डेप्थ उसके अंदर डेवलप करते हैं, आपको उस हिसाब से लेवल जो है वो डिसाइड होता है उसमें. ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे. और लास्टली वी हैव, इधर भी कोई क्वेश्चन नहीं है. ज्यादातर आप देखें आपको 2-2 क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे कैलिफ से. सो यू नीड टू सी, एक ट्रेंड है. और some students skip the whole articles topic, sometimes thinking कि ये आएगा ही नहीं है, चॉइस में छोड़ देंगे. There are papers in which 2 questions on articles are asked and nothing from pillars. So don't take these risks कि मैं pillars छोड़ दूं या मैं articles छोड़ दूं. There is the chance कि इधर उधर से क्वेश्चन आते हैं. Okay, this is the total of up to 2022. इससे पिछले भी क्वेश्चंस है, but they are almost same. तो जो कल का टेस्ट होगा वो आपका